The topic is sterile dosage form. Already we are in this topic. We have already studied in the previous classes about sterile dosage forms and advantages, disadvantages, everything. The formulation of parenteral preparations. And now today's topic is the processing of large-scale parenterals. The processing of large-scale parenterals also we have completed, I think. So today's topic is we are going to study about. So ये आपको समझ में आ गया बेटा प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज स्केल पेरेंटल्स इसमें पर्सनल्स कैसे रहते हैं एंड आल्सो सीलिंग द कंटेनर्स स्टेरिलाइजेशन कलेक्टिंग द मटेरियल्स फिल्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ पेरेंटल्स एवोल्यूशन में भी हम पढ़ लिए थे कि स्टेरल टेस्ट कैसे करते हैं लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं पैरोजन टेस्ट क्लैरिटी टेस्ट अस्से labeling and packing. These are we have completed till now. Now the topic is from today in the sterile dosage forms. Evaluation of parenteral preparations. Evaluation parenteral preparations में हम इससे पहले पढ़े थे कि what are the tests we have to conduct for the final product. Sterility test, leakage test, pyrogen test, clarity test, assay. After completing that, what are the evaluation steps we have to carried out? Those are so we have to study about the uh, parental preparations areas. What are the special areas for the parental preparations? We have to study the cleanup area. First of all, whenever you are going to prepare some pharmaceutical products, now we are going to prepare parenteral preparations. You all know parenteral preparations are very specific preparations you have to do in a very careful manner. For that purposes, we have to provide some specific places for the parenteral preparations. We are not taking the precaution measurements in the tablets, capsules, and syrups and all. But for the parenteral preparations, you have to go for the cleanup area, sterilized conditions, aseptic conditions. These are the precautionary measurements you have to take whenever you are going to prepare some parenteral preparations. For that purposes, we have to take, we have to carefully prepare those parenteral preparations. In that, first of all, clean up area. Why? Because in our evolutionary measurements also, first of all, whenever you are going to prepare parenteral products, you should have to take the first of all cleaning of the containers. Then you have to go for the filling of the preparations. Like that, first of all, you have to go to the cleanup area. Cleanup area. This area is not an aseptic area, but it is a cleanup area. The area and atmosphere of the room must be free from dust, fibers and microorganisms. बोले तो ये क्लीनअप एरिया जो भी है हम लेते हैं if you go for the other classes in the B Farm or M Farm level, there you can understand the about cleanup areas, clean rooms, class 1, class 100, class 1000 बोल के क्लीनिंग रूम्स रहते हैं वो रूम के हिसाब से ही हम ये पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाते हैं वैसे ही दिस इज नॉट द aseptic area aseptic conditions नहीं रहते इसमें but room should be free from dust fibers and microorganisms. The area and atmosphere of the room where we are going to manufacturing of parental products are must be free from dust, fibers, and microorganisms. It should be constructed. Uh, it should be constructed to withstand moisture, steam, and detergent. The ceilings and walls can be coated with material which should prevent the accumulation of dust and microorganisms.
बोलते कैसा रहता है ये रूम, बोले तो देखो हम इसमें दिखाएंगे आपको। कितना क्लीन रहता है रूम, कि इसका सीलिंग, रूम, ये सब कैसा रहता है, बहुत क्लीन रहता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर यहाँ पर डस्ट कुछ भी तो भी अक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो इमिडिएटली इट विल फॉल इनटू द ग्राउंड। अगर वो वॉश कर दिए तो हो जाता है। उतना बहुत स्मूथ एरियाज रहते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस एरियाज में वहां पर कुछ कटिंग्स, एडजस्ट, वो भी ज्यादातर नहीं रहने के लिए सोचते हैं। ठीक है। क्लीन अप एरिया बहुत, एरिया बोले तो वहां पर सीलिंग्स, वॉल सब कुछ ऐसा रहता है कि अगर कुछ मटेरियल जाके वहां पर बैठ गया तो वो फिसल के नीचे आ जाना चाहिए, वैसा रहता है। ठीक है। सीलिंग्स एंड वॉल्स कैन बी कोटेड विद द मटेरियल। वो मटेरियल उतना क्लीन नीट रहता है। ठीक है। इट शुड बी प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड ऑल्सो एग्जॉस्ट फैंस, एग्जॉस्ट फैंस भी रहता है। जैसे अपना किचन में एग्जॉस्ट फैन रहते हैं, कुछ भी अंदर आया तो बाहर छोड़ देगा। एग्जॉस्ट फैन शुड बी फिटेड टू रिमूव हीट एंड ह्यूमिडिटी फॉर द कंफर्ट्स ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन द एरिया। कुछ भी उसमें कुछ तो भी ह्यूमिडिटी और हीट कुछ तो भी जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्लीन अप एरिया में कुछ भी हो रहा है, तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूम बट थ्रू एग्जॉस्ट फैंस। So this area should be kept clean so that contaminants may not be carried into a septic area. बोलो तो ये क्लीन अप एरिया से जो क्लीनिंग करके उसके बाद ही तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप्स को चले जाते हैं, इसलिए इट शुड नॉट बी कैरिड टू द असेप्टिक एरिया। द कंटेनर जो भी लेते हैं, क्लोजर्स आर प्रॉपरली वॉश्ड and dried in this area. This is the area where you are going to wash your containers and closures of the parental preparations. So this is your cleanup area. Please remember the words. Why I repeat so many times? Because you should have to tell with me. Then only you can remember it very well. This cleanup area you have to understand, and you have to think that it is not an aseptic area, but it should be free from all dust, fibers, and microorganisms. Ceilings and walls should be constructed like the where there should not be any accumulation of dust and microorganisms. And here some exhaust fan should be fitted to remove the heat and humidity from the manufacturing area. And here what we have to do, here we are doing the cleaning of the containers and closures of the parental preparations. Please remember and understand better. It is very easy. Okay. Next, preparation area. The preparation area where the ingredients are mixed and preparation is made for filling operation. Okay. Preparation is made for filling operation. Here is also no need of aseptic conditions, but strict precautions are needed here. Okay. Strict precautions are required. Here is also this preparation area is also not an aseptic conditioned area, but here you have to follow some strict precautionary measurements. Cabinets and counters should be made of स्टेनलेस स्टील। देखो यहाँ पर देखो कैसा स्टेनलेस स्टील ही रहता है यहाँ पर भी। ठीक है। जो भी पेरेंटल एरियाज हम देखते हैं वहां पर बहुत क्लीन एंड स्टेनलेस स्टील से ही वॉल्स वहां पूरा वैसे रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है दूसरी, बहुत क्लीन एरिया रहते हैं। कैबिनेट्स एंड काउंटर शुड बी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड नो स्पेस इज लेफ्ट फॉर द डर्ट टू अक्यूमुलेट। ऐसा सेल्फ ओपन शेप्स वो कुछ भी नहीं रहता है कि accumulate the dust particles there. So clean up area में आप आंखें बंद करके भी बोल सकते हैं कि it is not aseptic conditioned area, free from dust, fibers and microorganisms. Ceilings and walls should be constructed in such a way that there is no dust accumulation and microorganism accumulation. Next, preparation area. Preparation area where the ingredients are mixed. Preparation area आपको टाइटल से समझ में आना चाहिए कि where we mix all the ingredients and we will prepare the parental preparations is made for filling operations। जो कंटेनर्स में हम फिल करते हैं, जो पाउडर रेडी रहता है उसको वाटर फॉर इंजेक्शन में डाल के हम सिंगल डोज मल्टी डोज कंटेनर्स में हम फिल करते हैं। Here is also there is no need of aseptic conditions, but strict precautions should be
required. And cabinets and counters should be made of stainless steel, and there is no space left for the dirt to accumulate. क्योंकि ना अगर dirt या कुछ तभी particles वहां पर accumulate हो गया तो समझो फिर से वो सेप्टिक एरिया नहीं रहेगा. That is not the cleaned area. ठीक है बेटा. So this is about your preparation area where you are going to mix all the ingredients and made for filling operation. Please remember it. Next is quarantine area. Please beta remember about the quarantine area. This area is where we will keep some products. Where we will keep some products. In that randomly we will collect some products for the laboratory evaluation. Please understand the quarantine area. After filling, sealing and sterilization only we will complete our manufacturing process of the preparation process of our parental preparations. These are held up in this area. These are पूरी तरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद क्वारंटाइन एरिया में लेके जाके रख देते हैं. पूरा प्रोडक्ट्स क्वारंटाइन एरिया में लेके चले जाते हैं. From where the samples of different batches are randomly collected for the laboratory evaluation purpose. बोल तो ये है बेटा. देखो हम evaluation में क्या करते हैं, आप एक बार पीछे चले जाना. evaluation में हम स्टेरिलिटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, पैरोजन, क्लैरिटी टेस्ट, ऐसे टेस्ट हम करते हैं. कब करते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रिपरेशन प्रोसीजर्स. देखो हम इससे पहले बताए थे कि सीलिंग करना है, स्टेरिलाइजेशन करना है. पहले क्या करते हैं हम? क्लीन करते हैं, है ना. देखो क्लीन करते हैं कंटेनर्स, उसके बाद फिलिंग करते हैं फाइनल कंटेनर में. उसके बाद क्या करते हैं? सीलिंग करते हैं. उसके बाद स्टेरिलाइजेशन करते हैं. उसके बाद कलेक्शन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं. बोलते क्या है बता? उसके बाद ये हम एवोल्यूशन करते हैं. एक बार अपना प्रिपरेशन खत्म हो गए हैं, उसका हम प्रिपरेशन का करने के बाद वो फाइनल कंटेनर्स विथ मेडिकेशंस, वो फाइनल कंटेनर्स को हम टेस्ट के लिए भेज देते हैं. एक बैच में मानो एक 5 लाख सैंपल्स हम बनाए हैं, उसमें से बस एक 50 एम्पल्स हम लेके टेस्ट करना है. बाकी का एम्पल्स कहाँ रखते हैं? जो हम बैच में से हम निकाल के लेके जा रहे हैं, तो बाकी का एम्पल्स कहाँ रखते हैं? द एरिया वेयर वी विल कीप आर द क्वारंटाइन एरिया. वो क्वारंटाइन एरिया में रख देते हैं. वहां पर एक लेबल चिपका देते हैं, दिस इज अंडर एवोल्यूशन प्रोसेस. वही क्वारंटाइन एरिया में 3 जगह रखते हैं. 3 जगह एक एक. ठीक है. एक जो भी प्रोडक्ट खत्म करते हैं उसको लेकर आके वहां रख देते हैं. उसका सैंपल्स जो है अभी टेस्ट के लिए लेके जाते हैं. आने के बाद इमिडिएटली वहां पर क्या कर देते हैं? येलो कलर का एक स्टिकर डाल देते हैं. येलो कलर का यहाँ पर इस बैचेस के ऊपर येलो कलर का स्टिकर डाल देते हैं. इसका मतलब क्या है? इट इज अंडर प्रोसेस. ठीक है. इट इज अंडर प्रोसेस. उसके बाद एक बार वो टेस्ट पास हो गया, फेल नहीं हुआ है, पास हुआ, तो वही बैचेस को कॉटन के ऊपर क्या रख देते हैं? ग्रीन कलर स्टिकर डाल देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज परफेक्ट फॉर द डिस्पैच. दिस प्रोडक्ट इज परफेक्ट फॉर द डिस्पैच टू द आउटसाइड. वैसा बोल के वहां पर ग्रीन कलर डाल देते हैं. अगर फेल हो गया है, अगर वो प्रोडक्ट फेल हो गया है, हम यहाँ पर देखे हैं, हम टेस्ट करते टाइम पे देखो ये प्रोडक्ट जो है ये बैच का एक में लीकेज टेस्ट में फेल हो गया है. अगर ऐसा फेल हो गया है तो हम क्या कर देते बेटा? उस जो फेल हो गया उस प्रोडक्ट को जो जाके वहां पर रेड कलर लेबल डाल देते हैं. वहीं पर 3 एरियाज रहते हैं. जो आते ही जो एवोल्यूशन टेस्ट के लिए जाते हैं उसके पास येलो कलर बैच डाल देते हैं. उसके पूरे कॉटन जितना 5 लाख का जो कॉटन रहते हैं उसके पास हम लगा देते हैं. उसके बाद वो टेस्ट खत्म होने के बाद पास हो गए तो ग्रीन कलर, फेल हो गए तो रेड कलर. जो ग्रीन कलर का जो है वो बाहर चले जाते हैं डिस्पैच के लिए, बाहर मार्केटिंग के लिए चले जाता है.
या स्टोरेज रूम में चले जाती है। क्वारंटाइन एरिया में बस टेस्ट के टाइम में ही जो भी प्रोडक्ट है, टैबलेट्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम आपको क्वारंटाइन एरिया के बारे में समझा रहे हैं बस। यहाँ पर जो भी टेस्ट के लिए भेजा जाते हैं, सिरप्स रहने दो, टैबलेट्स रहने दो, पेरेंटल प्रोडक्ट्स रहने दो, वॉट एवर इट मे बी द प्रोडक्ट, it will reach after completing all the procedures. After entering into the final container, it will reach the quarantine area where we have to test our evaluation test. After completing evaluation test, then only the product will be sent to the storage area from where we will dispatch to the outside for the marketing purpose. Okay? So that is the area of quarantine area. After filling, sealing, sterilization are held up in this area, samples of different batches. एक बैच का कितना रहता है कि हमको पता नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, वॉट एवर इट मे बी. Different batches are randomly collected by the analyst and they should be sent to the laboratory for its evaluation test. Those products will be kept in the quarantine area. समझ में आया बेटा क्वारंटाइन एरिया के बारे में? ठीक है. नेक्स्ट. Yes. हाँ, नेक्स्ट. अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं इमीडिएटली. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. नेक्स्ट इज फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया. बस यहाँ पर सब, यहाँ पर क्लीन अप एरिया में हम पूरा यूटेंसिल्स क्लीन कर दिया, उसके बाद अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद क्वारंटाइन में एरिया में आ गया, प्रिपरेशन एरिया में सब खत्म हो जाते हैं बेटा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है, उसके बाद क्वारंटाइन एरिया में चले जाते हैं. क्वारंटाइन एरिया में अगर हमारा पूरा इवोल्यूशन टेस्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट वी विल गो टू द फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया. सो प्रॉपर पैकेजिंग इज एसेंशियल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन के पर्पज से हम अच्छी तरह से वह एरिया में चले जाते हैं. The labeled container should be packed in positioned boxes. अच्छी तरह से बॉक्सेस में रख देते हैं. बोलो तो हम प्रोटेक्शन किस लिए करते हैं? अगेंस्ट फिजिकल डैमेज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज. एक बार फिनिशिंग होने के बाद हम उसको अच्छी तरह से पैक करते हैं टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज. बोलो तो ये कुछ टूटना नहीं, ग्लास एरिया, ये ग्लास कंटेनर्स रहते हैं, वो टूटना नहीं. एंड आल्सो फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में सही रहना बोल के उसको थर्मोकॉल अंदर डाल के अच्छी तरह से पैक कर देते हैं. व्हेन ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज के टाइम में भी इसको अच्छी तरह से पैक करके रख देते हैं. The packed parental products are temporarily stored till it is finally disposed of. ये स्टोरेज जो भी पैकिंग एरिया में क्या करते हैं, ये पैक्ड पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर टेम्पररली स्टोर्ड टिल इट इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ. बोलते तो बाहर भेजे तक यहाँ पर टेम्पररली स्टोर करके रख देते हैं. दैट इज कॉल्ड फिनिशिंग एंड पैकिंग एरिया. यहाँ अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए अच्छी तरह से पैक करके देन द लेबल्ड कंटेनर शुड बी पैक्ड इन ए पोजिशन्ड बॉक्सेस. अच्छी तरह से पोजिशन्ड बॉक्सेस बोल तो आपको पता होगा कि उसमें कॉटन्स में भी एक पोजिशन बॉक्सेस रहते हैं, एक एक वायल एक एक अच्छी तरह से पोजिशन बॉक्सेस रहते हैं, उसमें डाल के अच्छे रखते हैं. उसके बाद ये टेम्परली यहाँ पर स्टोर करके रखते थे, उसके बाद इट इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, ये बाहर भेज देते हैं. नेक्स्ट इज असेप्टिक एरिया. असेप्टिक एरिया में फ्रॉम प्रिपरेशन areas, the parental formulations will be transferred to the aseptic filling area. It is a very important area. Aseptic filling area. The parental preparations are filtered, filled into final containers, and subsequently sealed. Where here the preparation area, under this preparation area only, where we will do here the aseptic area. ठीक है, aseptic area में ही हम पूरा फॉर्मुलेशन का जो भी इंग्रेडिएंट्स है हम उसमें फिल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद प्रिपेयर करते हैं, फिल्टर करते हैं एंड फाइनल कंटेनर्स में डाल देते हैं. द एंट्री ऑफ फॉर पर्सनल्स इनटू असेप्टिक एरिया शुड बी थ्रू एन एयरलॉक. एयरलॉक बोल तो जो भी पर्सनल्स अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए जो भी जाते हैं ना, वो एयरलॉक सिस्टम से जाते हैं. To maintain sterility, specially trained person should be
selected to work. ये पेरेंटल प्रिपरेशंस हर कोई काम नहीं करते बेटा, अच्छे तरह से जो ट्रेंड है, उसके ऊपर अच्छा भरोसा है, वही लोग जाके वहां पर काम करते हैं. सो दे मस्ट बी ऑर्डरली, नीट एंड रिलेबल. इसका असेप्टिक एरिया में जाने के लिए देखो बेटा, ये देखो असेप्टिक एरिया में ये कैसा फुल पैक्ड है. इसका जो है ऑक्सीजन भी अंदर से लेता है, वो रूम से नहीं लेता है, पूरा फुल पैकेज रहता है सेप्टिक एरिया में. जो भी जाता है ये देखो ऐसा रहता है, इसके पीछे इसका ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, देखो ऐसा रहता है. असेप्टिक एरिया में जो काम करते हैं ऐसा रहता है. प्रिपरेशन एरिया में, क्लीन अप एरिया में जो रहता है देखो ऐसा रहता है, बहुत सिंपल रहता है. ड्रेस कोड तो रहता है, मगर असेप्टिक एरिया में रहना अलग है, पेरेंटल प्रिपरेशन का क्लीन अप एरिया प्रिपरेशन एरिया में रहना अलग है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें जो काम करते हैं उसको ट्रेंड पर्सन को ही लेते हैं, उसको हैंडलिंग करना बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, उसी को वहां पर लेके जाते हैं. एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स आर फिल्टर्ड. द एयर इन द aseptic area should be free from all dust and microorganisms and fibers. I have already told you, like in the cleanup area, the air in the aseptic area should be free, and this can be achieved by HEPA filters which can remove particles up to 0.3 microns. ठीक है, इसमें HEPA filters फिट होके लैमिनार एयर फ्लो के साथ, लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम, लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम के साथ इसके अंदर जाते हैं. लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम बोल तो द एयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्लो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बोल तो उसका वेलोसिटी जो भी है, बोले तो वो एयर फ्लो कैसा रहता है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वो एयर फ्लो होती रहती है. ठीक है, वैसा उसमें असेप्टिक एरिया में चले जाते हैं, इसमें हेपा फिल्टर्स के साथ फिटिंग करके रख देते. ठीक है बेटा. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशंस. दीज आर द areas, very important areas for the parental preparations. Please read well, and if you don't understand anything, please come to me, I will explain you very well. ठीक है. उसके बाद what are the preparations we will prepare in these clean areas. ठीक है, बोले तो parental preparations, what are the types. ठीक है, those are preparation of intravenous fluids. So these intravenous fluids I will let you know in the next slide. See here beta, these are the intravenous fluid जो भी हम IV के साथ बल्क अमाउंट में लेते हैं. ठीक है. So intravenous fluids are the large volume of parenteral solutions intended to be administered. Why we will administer these preparations? Because to supply body fluids, electrolytes, or provide nutrition to the body by intravenous route. These are available in 100 to 1000 ml. See here, 100 to 1000 ml fluids रहते हैं. इसमें जो है दिस इंट्रावीनस फ्लूइड्स क्यों हम यूज करते हैं, आप हमारे लैंग्वेज में बताना बोले तो क्या है, अपने लैंग्वेज में बताना बोले तो कुछ प्रॉब्लम आया है तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज चढ़ा लिया, अभी थोड़ा ताकत आया है. पता है आप, ये कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा लिए, थोड़ा ताकत नहीं था इसलिए अच्छे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोज चढ़ाया ताकत आ गया? टू सप्लाई बॉडी फ्लूइड्स, वॉट एवर इट मे बी, बॉडी फ्लूइड्स विच आर in diarrheal conditions, which will last in the diarrheal conditions, then we will supply the body fluids through this intravenous fluids. Electrolytes, जो भी electrolytes हमको कम हो गया, or provide nutrition to the body. So these are provided to the patients who undergone surgery or who may be in a serious condition. ठीक है, जो अपना मुंह से फूड अच्छी तरह से नहीं ले पाते, उन लोगों के लिए ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स देते हैं. ठीक है बेटा. दीज आर 100 to 1000 ml. These are the volumes of 100 to 1000 ml है. ठीक है. So you have to understand intravenous fluids बोलते क्या है. Next is dextrose for injection. These are available in 5, 10, 20 and 25% weight by volume solution में. The solution is used as a fluid and nutrient replenisher. What is the meaning of replenisher?
अगर हम कुछ खो गया है, न्यूट्रिएंट्स खो गया, उसको रीगेन करना, रिप्लेनिशर मतलब रीगेन करना, रीगेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड। दिस सोडियम, अगर इसमें डेक्सट्रोज में क्या क्या रहते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज। सोडियम क्लोराइड क्या रहते हैं, 0.11 टू 0.9%, 0.11 टू 0.9% का इसमें रहता है। डेक्सट्रोज में 2.5 टू 25% तक उसमें क्वांटिटी रहता है, वेट बाय वैल्यू। आप डेक्सट्रोज के बारे में एक बार देखेंगे तो कभी कभी अगर डायबिटिक पेशेंट को शुगर लेवल्स कम हो गया, तब भी ये डेक्सट्रोज इंजेक्शन दे देते हैं, तो इंडे डायरेक्टली उसको थोड़ा बहुत शुगर चढ़ जाए, ठीक है। सो दिस इज द डेक्सट्रोज फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए। ये भी हमको 100 ml तक भी रहता है, ठीक है, स्मॉल से लेकर बड़े तक, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनिटोल इंजेक्शन। ये भी कॉन्सेंट्रेशन 5, 10, 15, 20% तक रहता है। इट इज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एड एंड रीनल फंक्शन डिटर्मिनेशन एंड डायूरेटिक, ठीक है। रीनल फंक्शन डिटर्मिनेशन में लेते हैं, डायग्नोस्टिक एड कुछ तो भी टेस्ट करने के लिए इसको एक एड बोलो तो क्या है, एक टूल जैसा हम यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक्स बोलो, डायग्नोस्टिक टूल बोलो तो क्या है, कुछ टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। रीनल फंक्शन डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। एंड आल्सो इट इज यूज्ड एज डायूरेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेटिक, इट विल प्रोड्यूस मोर यूरिन, ठीक है। व्हाई, यू हैव टू एलिमिनेट सम एलिमेंट्स फ्रॉम द किडनी, ठीक है। हम उसको ना, ये डायूरेटिक इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर पिल्स। इसका मतलब ये है, किसी को अगर किडनीज में बहुत प्रॉब्लम आ गया है, रीनल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, साल्ट ज्यादा उसमें अक्यूमुलेट हो गया है, तो इमीडिएट वो लोगों को डायूरेटिक्स टैबलेट दे देते हैं, टैबलेट्स और इंजेक्शन दे देते हैं। देन व्हाट विल हैपन, उसमें जो भी साल्ट डिपॉजिट है, जो भी साल्ट डिपॉजिट है, सोडियम साल्ट जो भी डिपॉजिट है, वाटर डिपॉजिट हो गया, वो इमिडिएटली बाहर कर देते हैं, यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं डायरेक्ट लिए, तो यूरिन आउटपुट जो है बढ़ जाते हैं। वैसा मैनिटॉल इंजेक्शन भी हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज मैनिटॉल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। दीज आर 5, 10, 15% में हमको मिलता है। सो इसमें 15% मैनिटॉल एंड 0.45% सोडियम क्लोराइड इसमें हमको मिलता है, ठीक है। 15% मैनिटॉल एंड 0.4% ये सोडियम क्लोराइड इसमें ले लेते हैं। दिस इज आल्सो यूज्ड एज डायूरेटिक। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट डायूरेटिक। नेक्स्ट इज रिंगर इंजेक्शन। It contains 0.86 sodium chloride, 0.03% potassium chloride, and 0.33 calcium chloride. It is used as fluid and electrolyte replenisher. ठीक है, ये रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन अब आगे जाके बी फॉर्म में या एम फॉर्म में, ये फ्रॉग डिसेक्शन जब करते हैं, हार्ट का रीडिंग्स जब लेते हैं, देन ओनली देन वी विल यूज दिस सॉल्यूशंस, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशंस, ठीक है। सो इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्लूइड एंड आल्सो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। कुछ भी हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी हो गए तो वो रीगेन करने के लिए भी ये रिंगर इंजेक्शन लेते हैं। उसके बाद रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशंस, इट कंटेन्स 2.7 MeQ, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हम उसमें लेते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज सिस्टमिक अल्कलाइजर फ्लूइड एंड आल्सो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर ओनली, ठीक है। सो these are the preparations we will prepare as a parenteral preparations. In the parenteral preparations, not only ampoules and single dose and multi-dose containers, we will also use these intravenous fluids and dextrose mannitol ringer solutions also we will prepare as a parenteral preparations. Please read all these types, ठीक है बेटा। So next we will come to the point of about intravenous fluids, how they will used, in what conditions we will use these intravenous fluids. These intravenous fluids are used for a number of clinical conditions. ये ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, कितने टाइम में हम ग्लूकोज चढ़ाते हैं देख लेते हैं अभी। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज टू मेंटेन थेरेपी फॉर सर्जरी पेशेंट्स। अगर वो लोगों का सर्जरी पेशेंट्स को अच्छी तरह से वो
मेंटेन करना है, वो थेरेपी को मेंटेन करना है, देन आल्सो वी विल यूज दिस इंट्रावेनस फ्लूइड्स. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी टू सर्व डायोरिया. डायोरिया में क्या होती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रिएंट्स जो भी है पूरा लॉस हो जाते हैं, वॉमिटिंग मोशंस में पूरा लॉस हो जाते हैं. उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसा भी हम लोग जो है ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम यूज करते हैं. उसके बाद मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक न्यूट्रिशन. जो बहुत दिनों से खाना नहीं खाता है, चक्कर आके गिर गया, उसको बेसिक न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हम ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स हम लेते हैं. नेक्स्ट इज फॉर प्रोवाइडिंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन. बोल तो वो कुछ भी नहीं खा रहे. देखो ब्रेन सर्जरी पेशेंट्स है, ब्रेन डेड पेशेंट्स है, कुछ पेशेंट्स ऐसा रहता है कि उसको कुछ भी नहीं लेने को होता है, ठीक है, मुंह भी नहीं खोल पाते. सो देन दे विल प्रोवाइड टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ओनली थ्रू पेरेंट्रल प्रिपरेशंस. दे विल प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिशन क्वांटिटी, ठीक है. देन आल्सो वी विल यूज दिस इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड आल्सो एज अ व्हीकल फॉर अदर ड्रग सब्सटेंसेस. पर तो हमें इंजेक्शन के हिसाब से उसको देना है, मगर उतना पोटेंट ड्रग हम उसको ऐसे ही नहीं दे सकते. तो वो लोग क्या करते हैं, ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स को चढ़ाते हुए उसमें इंजेक्शन डाल के हमको ग्लूकोज चढ़ाते हैं. आपको ये एक्सपीरियंस होगा, कुछ इंजेक्शन उसमें मिला के देते हैं. सो देन इट इज एक्टिंग एज ए व्हीकल फॉर अदर ड्रग सब्सटेंसेस. प्लीज रिमेंबर बेटा, these are the points where these 5 conditions where we will use this intravenous fluids for maintenance surgery, for replacement therapy, providing basic nutrition, and also total parental nutrition, and also we are using as a vehicle for other drug substances. ठीक है बेटा. So in these conditions we will use this intravenous fluids. Next, what is meaning of total parenteral nutrition actually? So intravenous administration, this total parenteral nutrition, only IV will take. IV administration of calories, nitrogen and other nutrients in sufficient quantity to produce tissue synthesis and anabolism. Whatever it may be, anabolism, catabolism, जो भी चलता है अंदर, वो सब चलाने के लिए sufficient quantities of calories, nitrogen and other nutrients we will supply through IV injections are called total parenteral nutrition. हम इससे पहले बताए थे कि कुछ भी हम उसको कहीं से भी वो लोगों को ताकत नहीं आ रही है, कहीं से भी उसको कुछ मुंह भी नहीं खोल पाते पेशेंट्स, उसको जो है totally we will give the everything from the parenteral only. Every nutrition we will give through the parenteral only. Through that we will supply calories, nitrogen and other nutrients in a sufficient quantity. We will provide to produce tissue synthesis and also anabolism. Okay, for that purposes we will use total parenteral nutrition, that is also called as total parenteral nutrition and also parenteral hyperalimentation. Okay, that is also called as hyperalimentation. So this is about your total parenteral nutrition. If you want to know uh, in a broad in this topic, you can go through your textbook. Next is packaging of parenterals. हम पैकेजिंग के बारे में अगर सोचेंगे तो these parenterals will be packed in the glass or plastic containers including the closures. देखो बेटा, यहाँ पर ग्लास का भी है. हम स्टार्टिंग में जब बताए थे उसमें प्लास्टिक कंटेनर्स भी हम ले लेते हैं. बहुत जगह हम प्लास्टिक कंटेनर्स में भी वाइल्स भी आते हैं, आम्पल्स भी आते हैं. हम बहुत जगह हम दिखाए थे. जाने वो कहाँ चले गए. ठीक है बेटा, प्लास्टिक वाइल्स में भी आते हैं. सो रिमेंबर दिस. So packaging of plastic and glass containers we will use including closures. They should be inert. बोलतो they should not react with any of the material of the packaging material. They should be
they should not interact physically or chemically with any of the ingredient of the formulation. These ampoules, whatever it may be the packaging materials we will take, they should not react with the they should not react physically or chemically with any of the ingredient of the formulation. If the solution is to be filled in the glass, if the solution is filled in the glass, it must be clear, colorless, or if we will take amber color to prevent the drug from the light. अगर हम fill कर रहे हैं glass में, if it is filling in the glass containers, then our formulation should be clear and colorless. ठीक है? और one sometimes we will take amber color to prevent the drug from the light. Photo sensitive drugs के लिए हम amber colors भी लेते हैं. The glass color must be light to permit the inspection of its content. ठीक है? The glass color must be light. कितना लाइट रहना है टू परमिट द इंस्पेक्शन ऑफ इट्स कंटेंट. बोले तो हमको विजुअल इंस्पेक्शन में हमको समझ में आ जाना चाहिए, उसको देखते ही अंदर क्लियर है भी. ठीक है. सो नेक्स्ट, these containers we will take of parenterals are mainly classified into two classes. First one is single dose containers and is second one is multi dose containers. ठीक है बेटा. So single dose containers and multi dose containers we will discuss in a next class, because single dose and multi dose we will discuss in a same class, then only you can understand very well. Up to this understand beta? Yes, ma'am. So these glass Yes, ma'am. containers will be in the single dose containers and multi dose containers. We will discuss about single and multi dose containers in a next class in a detailed manner. Okay, so till that we will end up the class here.